Hello, good morning everyone. Today I am explaining chapter number 3 of class 9th, that is coordinate geometry. So, coordinate geometry is a branch of mathematics, right, in which we are dealing or the position of a thing on a plane, right. So, basically plane like this. So, in this chapter we are dealing in Cartesian plane. So, what is the mean by Cartesian plane? Cartesian plane. So before going through Cartesian plane, first we must know what is the mean by a horizontal line and a vertical line. So first of all, this line is horizontal line. This is called horizontal axis, right? So basically horizontal line is a line which is parallel to the earth surface. Means अगर हम एक कोई line लेते हैं जो earth surface के parallel, like my position of hand. Now this line, this is the parallel to the earth surface. So this is known as horizontal. Clear? A line which is parallel to the earth surface is known as the horizontal. Is it clear? Now the second is a vertical. Clear? So this is called vertical line or axis. So what does it mean by vertical? A line which is perpendicular to the earth surface, right? Suppose अभी मैं अगर ऐसे हाथ करता हूँ, तो this is the position. ये जो line है, that is perpendicular to the earth surface. तो अगर कोई line earth surface पर perpendicular है, perpendicular means अगर वो earth surface से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, तो क्लियर है? So that is called a vertical line. So if the horizontal line or means axis, now these are the axis. The horizontal axis and vertical axis are intersect at the angle of 90 and dividing a plane, that is a plane I explained you earlier. So dividing a plane into 4 parts, clear? So this is known as Cartesian plane. Is it clear? And these 4 parts, 1, 2, 3, 4 is known as quadrant. These are quadrants. That is your first quadrant, quadrant second, quadrant third, and quadrant fourth. Right? And the intersecting point of the axis, these particular, is known as origin. Origin का मतलब क्या होता है? Origin एक ऐसा वर्ड है जब समझ में आता है कि एक ऐसी जगह या एक ऐसा पॉइंट जहां से आगे स्टार्ट हो रहा है या स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड origin. So this is called origin. Means इसके अगर हम राइट साइड मूव करेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो नेगेटिव लेंगे. कैसे लेंगे? तो क्लास 6 में आप लोगों ने नंबर लाइन किया था ऑन द इंटीजर्स. दैट टाइम यू प्लॉट द नंबर. सपोज दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो अगर आपको कोई नंबर 6 प्लॉट करना था तो आपने सिंपल उसको ऐसे किया था इन क्लास 6, राइट, ऑन द नंबर लाइन. एक तरीका और भी था कि टीचर ने आपको ऐसे ही करा दिया बाय चांस कि 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस इज योर आंसर 6, राइट. क्लास 6 में किया था आपने. इट्स अ सिंपल नंबर लाइन. अभी मैं एक सिर्फ पॉजिटिव नंबर आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूं. बट अगर मेरे पास एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि सपोज 6 प्लस माइनस 8, राइट. अगर आपको याद है आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी किए थे कि प्लॉट दिस ऑन द नंबर लाइन. तो बिकॉज 6 इज पॉजिटिव, सो व्हाट इज द पॉजिटिव नंबर साइड? एज वी नो कि 0 से राइट साइड पर नंबर कैसे होते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं. यानी कि वो नंबर कैसे होते हैं? ग्रेटर नंबर्स आते हैं कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट. क्लियर? सिमिलरली अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो नंबर्स कैसे आएंगे? -1, -2, -3, -4, -5 एंड डॉट 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 अप टू -इनफाइनाइट. गेटिंग? ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पहले से किया हुआ है. ओके. सो नाउ अगर हम इस पोजीशन को सॉल्व करना चाहते हैं ऑन द नंबर लाइन, अगर सिंपल करेंगे तो ये सिंपल आंसर क्या आएगा? 6 प्लस माइनस -8 इज इक्वल्स टू -2. दिस इज द आंसर. Clear? But this is arithmetic.
ठीक है, जहां पर हम नंबर्स के साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं एंड सिंपली वी आर सॉल्विंग. बट if we need to draw this condition on the number line, then how can we do it? So first of all, the number is 6. So first we have move 6 on the, because this is positive, तो 0 से 6 places हम कहां पर मूव करते थे? राइट साइड पर. अब बिकॉज द नेक्स्ट नंबर इज -8, तो -8 डायरेक्शन क्या दिखाता है? नेगेटिव आपको डायरेक्शन दिखाता है लेफ्ट साइड की. और कितने पॉइंट मूव करना है आपको? 8. ये सब आपने ऑलरेडी किया हुआ है. क्लियर? तो अगर मैं इसकी रिवर्स मूवमेंट करूंगा तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. So now I'm at the -2. So this time ये आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन. ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया? बिकॉज कुछ ऐसा ही हमारे पास यहां पर होने वाला है. ठीक है, ऑरिजिन जो होता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है. ठीक, क्लियर? और ऑरिजिन से राइट साइड पर जो टर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 और 5. और लेफ्ट साइड पर क्या होते हैं? -1 -2 -3. ऐसे ही अगर आप और ऊपर की साइड में मूव करेंगे तो यहां पर होता है 1 2 3 4 5 6. और डाउनवर्ड्स आएंगे तो -1 -2 -3 और -4 एंड डॉट डॉट चलता रहता है नॉन स्टॉप. मतलब ये कि अगर आप एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर मूव करेंगे तो टर्म्स आपके नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव. इसी लाइन से नीचे आएंगे तो टर्म्स कैसे होंगे या नंबर कैसे होंगे आपके? नेगेटिव. ऑरिजिन से अगर आप राइट साइड चलते हैं तो टर्म्स कैसे होंगे आपके? पॉजिटिव. और अगर लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो टर्म्स कैसे होंगे आपके? नेगेटिव. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर अब मुझे इसका साइन कन्वेंशन देखना हो तो ये जो प्लेस है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये वाला प्लेस, इसमें साइन कन्वेंशन क्या होगा आपका? दैट इज प्लस प्लस. बिकॉज इस डायरेक्शन में यहां पर मुझे आने के लिए पहले मुझे एक्स एक्सिस पर मूव करना पड़ेगा. अब ये क्या होगा या कैसे किया होगा आप लोगों ने? क्लास 8 में आपने प्लॉटिंग द पॉइंट्स देखा था. ठीक है, जहां पर आपने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया था क्लास 8 में चैप्टर नंबर 15 में. तो वहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे आपके पास लाइक 3 4. क्लियर? एंड -2 7. ठीक, या -2 -3. सो दीज आर सम पॉइंट्स व्हिच आई हैव टेकन. तो अगर हमें इसको प्लॉट करना हो तो हाउ कैन वी प्लॉट दिस? तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट. So co means 2. Co means 2. 2 conditions or 2 distances. तो coordinate is a combination of x and y. So coordinate जो होते हैं वो x y की फॉर्म में होते हैं, और x जो होता है that is distance on x axis. Similarly, जो y होता है that is distance on y axis. Is it clear? तो मतलब ये कि अगर हमें मूवमेंट करना है तो पहला हमारा जो पॉइंट होता है वो हमें x को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड पॉइंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? y को. अब हमें देखना होता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर टर्म्स पॉजिटिव है तो हमें राइट साइड मूव करना है ओरिजिन से, और अगर नेगेटिव है तो ओरिजिन से, दैट इज ओरिजिन से लेफ्ट साइड इन केस ऑफ नेगेटिव. क्लियर? y के लिए अगर y पॉजिटिव है तो ओरिजिन वाली लाइन से, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहां से ऊपर या नीचे मूव करते हैं हम लोग. इज इट क्लियर? तो सपोज, तो अगर नॉर्मल हम देखें तो डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन है यानी कि x, y, दैट इज अ कोऑर्डिनेट. हमेशा पहले आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना है और उसके बाद आपको वर्टिकल मूवमेंट करना होता है. इज इट क्लियर? तो अगर मुझे पहला आपका पॉइंट प्लॉट करना है, क्लियर, तो फर्स्ट सपोज ये पॉइंट है 3, 4. क्लियर? तो यहां पर x3 है एंड दैट इज पॉजिटिव. तो पहले आपको ओरिजिन से राइट साइड पर करना है मूव. तो ओरिजिन से चलेंगे आप 1 2 3. नाउ यू आर हियर एट 3 एंड द सेकंड पॉइंट इज 4. एंड नाउ चेक इट इसका साइन देखिए, दैट इज पॉजिटिव. सो पॉजिटिव के लिए मुझे कैसे चलना पड़ेगा? इस पॉइंट से 4 पॉइंट्स ऊपर. तो यहां से आप 4 पॉइंट्स ऊपर चले, 1 2 3 एंड दिस इज 4. सो दिस इज योर पॉइंट. अगर आप ग्राफ कॉपी पे देखेंगे तो ये एकदम क्लियर आएगा, बिकॉज ग्राफ पर आपका क्या होता है? बॉक्सेस बने होते हैं पर यूनिट पर, राइट? उसमें आपके बॉक्सेस होते हैं, स्मॉल बॉक्सेस और बिगर बॉक्सेस. जो बिगर बॉक्स होता है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? सो नाउ इन दिस वे यू कैन प्लॉट द पॉइंट. सपोज ये पॉइंट ए है आपका, सेकंड पॉइंट है -2, 7. अगेन -2 कहां पर है? ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर.
पहले आपको कहां करना है, एक्स पर मूव करना है, और कितना, -2। -2 क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन। मैंने आपको नंबर लाइन बताई, क्लियर है। नेगेटिव क्या शो करता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, पॉजिटिव क्या शो करता है, टुवर्ड्स द राइट, क्लियर। सो नाउ आपको मूव करना है 2 पॉइंट्स, 1 2 यहां पर आ गया, एंड देन नेक्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, 7 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए कहां पर मूव करते हैं, अप साइड पर, तो यहां से 7 पॉइंट ऊपर, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। सो दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट बी। सपोज ये मैंने पॉइंट बी चूज किया, इज इट क्लियर। सो इन दिस वे यू कैन प्लॉट द पॉइंट्स, इज इट क्लियर। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलो इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, आपके यहां पर 2 टर्म्स आती हैं, एक आती है एब्सिसा and the second is ordinate, clear. So what is the mean by abscissa? Abscissa is the distance on x-axis. Distance on x-axis is known as abscissa. तो clearly अगर हम देखें तो जो मेरा x की वैल्यू होती है that is your abscissa, clear. तो अगर हम चेक करेंगे यहां पर इन पॉइंट्स में, तो मेरी abscissa क्या होगी, 3,4 में 3 abscissa होगी, और -2,7 में x के प्लेस पर कितना है, -2, that is your abscissa, और -2, -3 में -2 इज योर ऑन एक्स एक्सिस और x, ठीक है। सो दैट इज योर एब्सिसा। तो जो आपको x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज योर एब्सिसा या डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। अब इसको 2 तरीके से लिखते हैं, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस बोले यानी कि आपने x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया, क्लियर, या डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, या y एक्सिस से आप कितना चले, राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर, बात तो एक ही है। y एक्सिस से कितना दूर चले आप, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्लियर। और अगर ऐसे बात करें दैट इज योर वर्टिकल एक्सिस, और अगर बात करें इस ढंग से, सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, इंग्लिश में आपको ऑन और फ्रॉम समझ में आ जाएगा, क्लियर। सो बेसिकली अब बात करते हैं ऑर्डिनेट की। तो ऑर्डिनेट क्या होता है आपका, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर आप जो डिस्टेंस मूव करते हैं यानी कि अप्स एंड डाउन, अब जो मूवमेंट करेंगे दैट इज डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। को मींस टू, राइट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चैप्टर में आपके पास, इसमें आपके पास पॉइंट्स होंगे एंड यू हैव टू राइट, मींस पूछा जाएगा आपसे कि ये पॉइंट्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाइन करते हैं। सपोज हम कुछ एग्जांपल चूज कर लेते हैं, सपोज मैंने लिया -3, -4, 7, 8, 8, 9 या -9 एंड -2, -4 अगेन। सो इन दिस वे अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द मींस -3 एंड -4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उसके लिए आप कहां पर आइए, यहां पर आइए अपने क्वाड्रेंट वाले सेक्शंस में। अब चेक कीजिए, इस डायरेक्शन में x पॉजिटिव है और ऊपर की डायरेक्शन में y पॉजिटिव था, तो दैट्स व्हाई यहां पे साइन कैसा आया था, पॉजिटिव पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में मूव करने के लिए मुझे पहले लेफ्ट मूव करना पड़ेगा, फिर मुझे ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड में y पॉजिटिव होगा बट लेफ्ट साइड पर x नेगेटिव होगा। सो दैट्स व्हाई आपका जो साइन होगा, साइन कन्वेंशन दैट वुड बी माइनस प्लस। ऑन द अदर हैंड अगर हम थर्ड की बात करें तो इस ऑरिजिन में आने के लिए मुझे पहले इधर मूव करना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस, देन नीचे आना पड़ेगा। तो यहां पर x भी नेगेटिव है और y नीचे की तरफ भी y भी नेगेटिव है, तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, माइनस माइनस। बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको x राइट साइड पर मूव करना है तो x पॉजिटिव और नीचे आने के लिए y नेगेटिव, तो यहां पर साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस और माइनस। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे अगर हमें अब आंसरिंग करनी हो तो अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज द बोथ टर्म्स आर नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, दैट इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। In this, both are positive. So according to this, first quadrant, because in first quadrant the both terms are positive. So this is your first quadrant. Next, plus minus x is a positive value, यानी कि डायरेक्शन राइट साइड फ्रॉम द ओरिजिन, -9 है तो यानी कि नीचे की साइड में, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा आपका, फोर्थ वन। Clear? And this one again, both terms are negative, so it is also third quadrant. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपने बेसिकली ये चीज सही से समझी होगी तो आप ये पूरा चैप्टर कर सकते हैं। इस चैप्टर में कुछ ही चीजें हैं आपकी, द फर्स्ट इज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, क्लियर, ओरिजिन। अगर मैं अब बात करूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन,
तो ओरिजिन पर ना तो आपने एक्स पर मूवमेंट की और ना ही आपने वाई पर मूवमेंट की, क्लियर। तो ओरिजिन पर एक्स भी 0 और वाई भी 0, सो दैट्स व्हाई ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0,0। इज इट क्लियर? बिकॉज कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस कॉमा डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। तो ओरिजिन पे ना आपने एक्सिस पर डिस्टेंस मूव किया और ना ही आपने वाई एक्सिस पर किया, सो दैट्स व्हाई आपका कोऑर्डिनेट सिंपल क्या बनेगा, 0,0। ये तो हुआ इस चैप्टर का सिंपल एक्सप्लेनेशन, क्लियर। सो एवरीवन पॉज द वीडियो, right, and note it down and make the note according to your language, clear? Thank you.